Welcome back, friends. This is Current Affairs Funda, Free Education Revolution. Subscribe our channel for more updates. So today I will deal with the 7th of March up to 14th of March current affairs. तो आज हम 7 से लेकर 14 मार्च तक की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे. And friends, current affairs should be in a very precise format, but I have given a lot of details also here. So let's go. Before that, something about our channel. Basically, we are delivering free education to all of you. Spread the word among your friends and share for those people who cannot afford the coaching classes. And you know, friends, learning is priceless, so please do at least and share this video as much as you can. And if you want any specific topic video, then please do comment on our Facebook channel. Our Facebook channel is facebook.com/current affairs funda CAF. ये हमारा Facebook चैनल है और आपके जो भी क्यूरीज डाउट हो वो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. एंड फ्रेंड्स, आई विल डिकोड दिस वीडियो इन द बाइलिंगुअल फॉर्मेट. दैट मीन्स आई विल एक्सप्लेन एज वेल एज हिंदी एंड इंग्लिश ऑल्सो. ओके, तो आज मैं इस वीडियो को हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूँगा. दिस वीडियो इन बी बाइलिंगुअल फॉर्मेट, ये दो भाषाओं में होगी. सो राइट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द memorandum of understanding or agreements that happened in the 7th of March up to 14th of March. Okay, so let's go right now. First MOU that was signed in between Cuba and European Union, say close to reaching the political accord. That means we can say, friends, European Union as well Cuba, they both have signed a memorandum of understanding. For what purpose? Cuba and the European Union are close to a deal on a new bilateral agreements which would improve their decades old relations. You know very well the relations with the European Union and Cuba that was not good in the previous time. That's why they are coming close and they are improving their relations. That's why they have signed a bilateral agreements. Bilateral agreements that basically happen in between two bodies. Okay, trilateral that means in between three bodies, bilateral that means in between two bodies. Okay, तो देखिए दो देशों के बीच में क्यूबा और यूरोपियन यूनियन ये संघ है, इसके बीच में क्या हुआ है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड हुआ है और ये वहाँ के जो 10 सालों से काफ़ी सालों से उनके रिलेशंस अच्छे नहीं थे, इसलिए रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए एक समझौता हुआ है. ओके, नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, इंडिया साइंस रैप्टर माऊ टू सेव बर्ड्स ऑफ अ प्रे. भारत ने क्या किया है, एक माऊ साइन किया है. जो भी प्रे वाले पक्षी थे जो शिकार करते थे, जैसे कि ईगल, लाइक ईगल एंड सम हैवी वर्ड्स. ओके, so to save these kind of words we have signed a memorandum of understanding to conserve several species of the birds. Government has signed raptor mau, a memorandum of understanding MOU on conservation of the birds of a prey in Africa and Eurasia. तो देखिए ये जो शिकार करने वाले पक्षी होते हैं इनके कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, इनको कंजर्व करने के लिए, इनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है, ठीक है, और ये रैप्टर MOU है. ओके, द रैप्टर MOU एक्सटेंड्स इट्स कवरेज टू द 76 species of birds of a prey, out of which 46 species including vultures and falcons. जो आपको बाज और गिद्ध दिखाई देते हैं ना, उन वो मिलाकर 76 ऐसे स्पीसीज हैं जिनके प्रोटेक्शन के लिए ऐसा कदम उठाया गया है. ओके, India is the 56th signatory state to sign the Raptor MOU that was concluded on October 22nd, 2008 and come into the effect on November 1, 2008. Okay, तो भारत जो है 56वां ऐसा देश है जो रैप्टर माऊ में सम्मिलित हुआ है. And next is friends, this one is the important news because related to the railway exams also. Indian Railways sign agreement with Bajaj Power. बजाज पावर के साथ भारतीय रेलवे ने एक एग्रीमेंट साइन किया है. बजाज पावर जनरेशन कंपनी हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द इंडियन रेलवे फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ललितपुर उदयपुरा रेल सेक्शन अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. You know very well what is the meaning of public private partnership. Under this public private partnership projects, a lot of private companies will invest in the government projects under this PPP model. Okay, तो बजाज पावर के साथ में ये MOU साइंड हुआ है और इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम होगा ये इस कंपनी के द्वारा किया जाएगा ललितपुर और उदयपुरा रेल सेक्शन के बीच में। इट वुड कॉस्ट नियरली 47 करोड़ रुपीस एंड बजाज पावर जनरेशन कंपनी दैट वी कैन से BPGC is setting up a 1980 megawatt thermal power plant in a Lalitpur district of Uttar Pradesh. Okay, so this is basically news here. And next is friends, BPGC presidents. Who is the BPGC presidents that we can say? Who is the president of Bajaj Power Generation Company? He is Mr. द्वारिकेश शर्मा. द्वारिकेश शर्मा जो है ये बजाज पावर जो लिमिटेड है बजाज इसके चेयरमैन है. ओके, नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, देर आर सर्टेन थिंग्स यू शुड नो ऑल्सो. बजाज पावर ग्रुप owned by the कुशाग्र बजाज. He is the real owner, or we can say is the founder of this Bajaj group, and these are the certain details about this group. Okay, so right now next MOU is there. Reliance Jio to offer free Wi-Fi at 6 stadiums for the T20 World Cup. So question is this, Reliance जो है, रिलायंस जियो जो 4G प्रोवाइडर है और ये कुछ स्टेशन जो कुछ स्टेडियम्स हैं इनके लिए फ्री वाईफाई फैसिलिटी दे रहा है ड्यूरिंग द T20 वर्ल्ड कप. ओके, तो आपको पता होना चाहिए T20 कप वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ हो रहा है, ये भारत में हो रहा है. एंड मुकेश अंबानी इज लेड रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड. रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड बेसिकली ऑन्ड बाय द धीरू भाई अंबानी, मुकेश धीरू भाई अंबानी. दिस इज द joint venture of these Ambani brothers. Okay, and friends, right now they are giving free Wi-Fi services to the 6 stadiums in the T20 World Cup. That is news here. So you know very well, Jio company is owned by the Dhirubhai Ambani, Mukesh Dhirubhai Ambani. And friends, spectators of cricket matches in the Firoz Shah Kotla, or we can say Eden Gardens in Kolkata, Wankhede and Chinnaswamy Stadium Bengaluru, and IS Bindra Stadium in the Mohali, and HPCS Stadium in Dharamsala. These are the basically 6 stadiums that will be directly benefited from the Jio Wi-Fi services. Okay, so there are certain things you should also know understand. कुछ points हैं जो आपको समझना जरूरी हैं. Jio also known as a Reliance Jio and officially as a Reliance Jio Infocom Limited. Jio कंपनी जो है वो Reliance Jio Infocom Limited के नाम से जानी जाती है. Is an upcoming provider of a mobile telephony, broadband services and digital services in India, founded in 2007. ये 2007 में Reliance Jio Infocom फाउंड की गई थी. इसको हम जियो भी बोलते हैं. ठीक है, तो आपको याद रखना है रिलायंस जियो इन्फोकॉम का दूसरा नाम कंप्लीट जो कह सकते हैं दूसरा नाम है रिलायंस जियो इन्फोकॉम. ये 2007 में फाउंड हुई थी. नेक्स्ट न्यूज इज देयर फ्रेंड्स, NTPC साइन MOU फॉर रिसर्च विद IIT Delhi. You know very well what is the mean of NTPC. NTPC, this is the government on public sector company, and it signed a MOU for the research work with the help of IIT Delhi. तो NTPC ने दिल्ली IIT दिल्ली के साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिसर्च पर्पस से साइन किया है. एंड डेवलपमेंट इन एरियाज ऑफ द म्यूचुअल इंटरेस्ट सच एज सिमुलेशन एंड मॉडलिंग. ओके, व्हाट पर्पस, व्हाट इज the purpose was simulation and modeling. Okay, heat transfer and thermal process, artificial intelligence, solar and renewable integration and other such areas. These are the basically energy areas, and something like artificial intelligence also, and solar and renewable integration. Okay, so you should know what the purpose of to signing this MOU, memorandum of understanding. Basically purpose क्या है MOU साइन करने का? तो पर्पज़ यही है कि मॉडलिंग और सिमुलेशन की फील्ड में, और हीट ट्रांसफ़र और थर्मल पावर प्रोसेस में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, और सोलर और रिन्यूएबल इंटीग्रेशन के क्षेत्र में ये IIT दिल्ली के साथ में NTPC ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है. नेक्स्ट इवेंट इज हियर फ्रेंड्स. The MOU was signed by the Sri R.K. Srivastava. He is basically executive director of the NTPC, and Professor Puneet Tuli, Dean R&D Research and Development of IIT Delhi. Okay, and IIT Delhi in the presence of Director IIT Delhi and other senior officials of the NTPC and IIT Delhi. Okay, so these are the basically staff of R.K. Srivastava, Executive Director of the NTPC, and Professor Suneet Tuli. He is a Dean in R&D for the NTPC section. तो R&D के जो NTPC सेक्शन में डीन है
इनका नाम है सुनीत तुली जी, और आर के श्रीवास्तव ये डायरेक्टर हैं, और आईआईटी का कुछ स्टाफ था, आईआईटी के डायरेक्टर्स थे, उनके बीच में ये साइंड हुआ है। ओके, you should know also this extra information also. NTPC Limited is an Indian central public sector undertaking under the Ministry of the Power, Government of India. NTPC founded in 1975. What is the meaning of NTPC? This is National Thermal Power Corporation of India, and chairman is Gurdeep Singh. Okay, तो गुरदीप सिंह जो हैं वो एनटीपीसी के चेयरमैन है, इज मिस्टर गुरदीप सिंह, और ये एनटीपीसी के चेयरमैन है। तो आपको ये पता रखना है कि एनटीपीसी के चेयरमैन कौन है और डायरेक्टर कौन है, और एनटीपीसी कब फाइंड हुई थी। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, सन फार्मा साइंस महेंद्र सिंह धोनी एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर द रिवाइटल। Okay, so you know very well Sun Pharma, basically Revital is a health vital capsule of provided by the Sun Pharma, and basically he signed MS Dhoni as a brand ambassador. तो ब्रांड एम्बेसडर सन फार्मा की कंपनी ने महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रेविटॉल, जो रिवाइटल जिसको हम बोलते हैं, जो कैप्सूल आता है ताकत के लिए, उस कैप्सूल को प्रमोट करने के लिए। ओके, so friends, you know very well, these are the certain things here. Sun Pharmaceutical Industries Limited has appointed Indian cricketer and captain Mahendra Singh Dhoni as the brand ambassador for its top selling health supplement Revital. Okay, I hope this is clear statement, nothing need to explain anymore. Mahendra Singh Dhoni selected as a popular choice based on consumer research conducted by the company. He is well known for pushing limits and achieving more and perfect combination of the physical fitness, strategic thinking and decision making, and fits well in the active lifestyle value proposition of Revitol H brand. Okay, so that's why महेंद्र सिंह धोनी को ही चुना गया है, क्योंकि उनकी फिटनेस बहुत अच्छी है, इसलिए सन फार्मा ने महेंद्र सिंह धोनी को जो रेविटॉल कैप्सूल है इसको लिए बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। ओके, महेंद्र सिंह धोनी इज एन इंडियन क्रिकेटर, यू नो वेरी वेल, एंड करंट राइट नाउ ही इज लीडिंग द इंडियन क्रिकेट टीम इन द T20 वर्ल्ड कप ऑल्सो, एंड करंट कैप्टन ऑफ द इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम in limited overs format, that means 20 over and 50 over formats, that is Mr. Mahendra Singh Dhoni, and for the test matches that is विराट कोहली। तो टेस्ट मैच में कौन है टीम को लीड करने के लिए? विराट कोहली, और T20 में बात की जाए और वनडे क्रिकेट में बात की जाए तो वहाँ पर है महेंद्र सिंह धोनी। ओके, एंड फ्रेंड्स, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड? दिस इज इन मुंबई, महाराष्ट्र। ओके, next is BSNL jumps into video on demand service. BSNL basically providing a service that is video on demand service. State run telecom firm BSNL, that is known as Bharat Sanchar Nigam Limited also. And friends, one thing more, two abbreviations that these are the very same, that is BSNL and VSNL. That is Videsh Sanchar Nigam Limited, and this one is Bharat Sanchar Nigam Limited. Okay, so this is basically a broadband international broadband service provider. Okay, this company is providing the legal lease line to set up the networks. Okay, that is known as the BSNL. All the internet facility in all over the India, that is provided by the BSNL, Videsh Sanchar Nigam Limited. Okay, and right now BSNL, this is country owned company, भारत संचार निगम लिमिटेड हैज़ डिसाइडेड टू ऑफर वीडियो ऑन डिमांड। BSNL ने कहा है कि हम वीडियो ऑन डिमांड सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराएंगे। 2 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हैं इनके पास में। They have announced partnership with Tata Sky to kick-start their operation right away. Basically, they have started this plan with the help of Tata Sky, with the collaboration of Tata Sky. So the question can be in this format: BSNL launched the video on demand service with the collaboration of which service provider? Option A Tata Sky, option B Videocon DTH, etc. So you should choose the correct one, that is Tata Sky. तो Tata Sky जो ऑप्शन है वो आपको चूज करना है, क्योंकि Tata Sky के साथ में ही इसने डिजिटल जो वीडियो ऑन डिमांड सर्विस है वो प्रोवाइड कराने, मुहैया कराने के लिए कमिटमेंट किया है। Bharat Sanchar Nigam Limited is an Indian state-owned company, telecommunication company, headquartered in New Delhi, India. BSNL CMD, Chief Managing Director, that is Anupam Srivastav. Okay, he is Mr. Anupam Srivastav, the Chief Medical, we can say like CMD. Okay, CEO and Managing Director. Memorandum of Understanding between India and Bahrain.
देयर इज साइंड अ मेमोरेंडम इन बिटवीन इंडिया एंड बहरीन, भारत और बहरीन के बीच में एक MOU साइंड हुआ है. For what purpose? The MOU will strengthen the bonds of the friendship between the two countries and increase the bilateral cooperation of the issues of prevention, rescue, recovery and repatriation related to the human trafficking, especially women and children, especially. देखिए, इंडिया और बहरीन, भारत और बहरीन के बीच में एक MOU साइंड हुआ है जो दोस्ती को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़्यादा है, और रेस्क्यू रिकवरी करने के लिए, और जो लोगों की तस्करी हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग दैट मीन्स टू सेल द ह्यूमन बॉडीज टू एनी अदर, जो लोगों को सेल कर देना, ओके, स्पेशली चिल्ड्रंस और एनीथिंग, किसी भी पर्सन को अगर कोई सेल कर रहा है या उसकी तस्करी कर रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग दैट मीन्स ह्यूमन की तस्करी करना, ओके. तो इन सब लोगों चीज़ों को रोकने के लिए एक MOU साइंड हुआ है भारत और बहरीन के बीच में, ओके. राइट नाउ देयर आर सर्टेन नेशनल न्यूज़ हेयर, सो वी विल डिकोड वन बाय वन हेयर फ्रेंड्स. लेट्स गो नाउ. फर्स्ट नेशनल न्यूज़ इज हेयर. इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन लेजिस्लेचर्स हेल्ड इन दिल्ली. A 2-day national conference of women legislatures held in New Delhi. Okay, so where the women legislatures conference held, where held? It held in Delhi. Okay, तो देखिए वुमेन लेजिस्लेचर जो कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पर अभी हुई है, ये हुई है दिल्ली में. And this was the basically 2-day national conference of women legislatures held in New Delhi from 15th of March up to 6th of March 2016. The theme of the event that was the women legislatures building resurgent India. Okay, the conference was inaugurated by the President Pranab Mukherjee. The valedictory ceremony was held in the central hall of the parliament. ये सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट वहाँ पर कंडक्ट हुई. अपार्ट फ्रॉम प्रेसिडेंट ने इसका इनोग्रेशन किया, लेकिन प्रेसिडेंट के अलावा PM मोदी वाज आल्सो एड्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन लेजिस्लेचर्स. प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और इसको एड्रेस किया. ही एड्रेस द वैलिडिक्टरी सेशन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन लेजिस्लेचर्स एंड स्टेज ऑफ वुमेन लेड डेवलपमेंट. ओके, तो उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें बताई, और ये महिला जनप्रतिनिधि, इसको हम जैसे कहते हैं कि वुमेन लेजिस्लेचर्स के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है. नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, ऑयल मिनिस्टर लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ ऑक्टोमैक्स यूनिट एट मथुरा यूपी. मथुरा विच इज इन यूपी. ओके, ऑयल मिनिस्टर लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ ऑक्टोमैक्स यूनिट एट मथुरा. सो राइट नाउ धर्मेंद्र प्रधान, ही इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस लेड. Basically, he founded foundation stone of a country's first of a kind Octomax unit at Mathura refinery. मथुरा रिफाइनरी में Octomax जो यूनिट है उसका इन्होंने शिलान्यास किया. इट विल हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ हाई ऑक्टेन गैसोलीन. ये बहुत ही उचित मात्रा में गैसोलीन के उत्पादन के लिए ये काम करेगी. मिस्टर प्रधान सेड दिस इज इन द कीपिंग विद द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज मेक इन इंडिया मिशन. तो जो मिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक मिशन है जिसका नाम है मेक इन इंडिया मिशन, इसमें ये बहुत ज़्यादा इसको ध्यान में रखते हुए ही इस ऑक्टोमैक्स यूनिट का शिलान्यास किया गया. According to the Mr. Pradhan, Mathura refinery will play a major role in meeting government's target of introducing BS6 standardizing petrol and diesel by the 2020. ओके, तो 2020 तक जो पेट्रोल और डीजल की स्टैंडर्डाइजेशन के लिए जो मात्रक तय किया गया है उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा. इन्वेस्टर्स समिट बिगेंस इन गुड़गांव. ओके, सो वेयर इन्वेस्टर्स समिट बिगेंस इन गुड़गांव विच इज इन हरियाणा. And the first 2-day happening Haryana Global Investor Summit 2016 has kicked off in the Gurgaon. ओके, तो आपको याद रखना है इन्वेस्टर समिट जो है वो कहाँ पर हुई है, ये गुड़गांव में हुई है. नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, 12 countries are participating in the summits. There are basically 12 countries are participating in the summit, that is investor summit that begins in Gurgaon. Besides several union ministers, a number of leading entrepreneurs and MNCs are taking a part in it. बहुत सारे यूनियन मिनिस्टर और जो कंपनियों के उद्योगपति हैं वो इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो द लीडिंग न्यूज़ दैट इज वेयर इज द
Global Investors Summit. This is in Gurgaon, and basically it will be in between 7th and 8th of March. ओके 7 और 8 मार्च के बीच में ये कंडक्ट हुई थी, और ये हरियाणा गुड़गांव में पड़ता है। ओके, सीएम ऑफ हरियाणा मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के सीएम कौन है? ये है मनोहर लाल खट्टर, और कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स eHeart, a online marketing platform launched by Union Government, Union Minister for the Women and Child Development Menaka Sanjay Gandhi. Menaka Gandhi, basically she is the Union Minister for the Women and Child Development, and she launched the Mahila eHeart portal in New Delhi to facilitate women entrepreneurs to sell their products to the buyers. जो भी घरेलू महिलाएं हैं, अगर वो अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहें तो एक eHeart नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ये मेनिका संजय गांधी इन्होंने लॉन्च किया है। ये वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के मंत्रालय को हैंडल करती हैं। ओके, so these are the certain news here. And friends, what is the eHeart portal? URL is mahila eHeart rmk.gov.in. okay, so this is the portal address here. This is an online marketing platform. It's an initiative for the women across the country as a portal of Digital India and Stand Up India. जो हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि डिजिटल इंडिया क्या है और स्टैंड अप इंडिया क्या है। डिजिटल इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया, अंडर दिस a lot of new entrepreneurs will open their own businesses, okay, and they will come into the market. इस स्टैंड अप और डिजिटल इंडिया के अंतर्गत बहुत सारे उद्योगपति अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए आगे आ रहे हैं, और उनको आसानी से लोन दिया जाएगा, लैंड एक्विजिशन मिलेगा। यही स्टैंड अप और डिजिटल इंडिया का बेसिक मोटो है, और ये मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बहुत एम्बिशियस प्लान भी है। ओके, तो इसको बढ़ावा देने के लिए महिला eHeart का उद्घाटन किया गया है। ये महिला eHeart ये कहाँ ओपन हुई है? ये हुई है बेसिकली न्यू दिल्ली में। फिच मेंटेन्स इंडियाज ग्रोथ फॉरकास्ट एट अ 7.5%। फिच आपको पता है, दिस इज बेसिकली अ ग्लोबल रेटिंग एजेंसी, has maintained India's growth forecast for the 7.5% for this 2015 and 16 fiscal year, and also sees higher growth around 7.7% and 7.9% over the next two financial years. अगले दो वित्तीय वर्षों में जो भारत की सिचुएशन है वो और भी अच्छी होगी। अभी 7.5 फिच ने मेंटेन की है भारत की ग्रोथ, ठीक है। आने वाले टाइम पे 7.7 और 7.9% करने की संभावना है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि फिच, व्हाट इज फिच? फिच है क्या? फिच एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है जो देशों की रेटिंग्स को तय करती है। ओके, सो व्हाट इज द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन और इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द कंट्री? किसी भी देश की वित्तीय समस्याओं के ऊपर अगर उसकी क्या पोजीशन है और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। ओके, however 8% growth will remain elusive in the short term, ठीक है। Next friends, the GDP growth in the first 3 quarters of the fiscal stands up at 7.6%, 7.7 and 7.3%. Okay. Next news is there friends, Germany partners with India to develop the Kochi, Coimbatore, Bhubaneswar as a smart cities, and Germany will partner India's turning Bhubaneswar, Coimbatore and Kochi into स्मार्ट सिटीज़। तो जर्मनी के कोलैबोरेशन से भुवनेश्वर, कोयम्बटूर और कोची को स्मार्ट सिटीज़ में तब्दील किया जाएगा। ये जानकारी दी है जर्मन के जो एम्बेसडर हैं मार्टिन ने, इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है। सो फ्रेंड्स, यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मनी? बर्लिन। एंड करेंसी, दिस इज़ अ यूरोजोन कंट्री। ओके, सो यू शुड नो दीज टू थिंग्स। आपको दो चीज़ें याद होनी चाहिए कि जर्मनी की कैपिटल क्या है, ये है बर्लिन, और करेंसी क्या है, ये है यूरो। 8 फीट जैन तीर्थंकर आइडियल इंटर्स इनटू द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। 8 फीट जैन तीर्थंकर प्रतिमा, जैनिज्म की प्रतिमा जो है उसका गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ये मेंशन किया गया है। ओके, सो 108 फीट, दैट इज नॉट 8 फीट, दैट इज 108 फीट, पार्डन फ्रेंड्स, दैट इज एक्चुअली समथिंग इज मिसिंग हियर। तो 108 फीट ये तीर्थंकर जी की प्रतिमा है। और लॉर्ड ऋषभ देवा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लॉर्ड? दैट इज ऋषभ देव। ऋषभ देव जी की 108 मीटर लंबी प्रतिमा
इसको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेंशन किया गया। एंड हु इज़ ऋषभ देव? ऋषभ देव ही इज़ द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन्स। ये जैन लोगों के पहले तीर्थंकर भी हैं। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि इनकी स्टैचू को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट इज मुंबई टू होस्ट ब्रिक्स फ्रेंडशिप सिटीज कॉन्क्लेव इन अप्रैल। Okay, so under the BRICS, Brazil, Russia, India, China and South Africa, these are the basically BRICS nations. Ultimately these are in number 5, 5 हैं ये BRICS nations. So BRICS Friendship Cities Conclave that will be held in Mumbai. Mumbai is hosting, मुंबई जो है वो होस्ट करने जा रहा है ब्रिक्स फ्रेंडशिप सिटीज़ कॉन्क्लेव को, जो अप्रैल में कंडक्ट होना है। मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया टू हाउस द ब्रिक्स फ्रेंडशिप सिटीज़ कॉन्क्लेव इन अप्रैल इन्वॉल्विंग टॉप अर्बन पॉलिसी मेकर्स एंड प्लानर्स फ्रॉम द ब्रिक्स नेशंस। तो मुंबई में कंडक्ट होने जा रहा है ये ब्रिक्स फ्रेंडशिप सिटीज़ कॉन्क्लेव। और ब्रिक्स नेशंस मैंने आपको बताया है कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है। 7th ब्रिक्स समिट जो है वो ऊफा रशिया में हुई थी। And now next 8th summit, it will be in the 2016, that was conducted in 2015. So in the 2016 it will be in India, Delhi. Delhi is hosting the 8th summit of the BRICS in 2016. तो भारत जो है 2016 में मेजबानी कर रहा है, मेहमानी, sorry, we can say it's a hosting. Okay. Indian scientists develop herbal drug to treat dengue symptoms, causes and the facts. भारतीय जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक ऐसा हर्बल ड्रग डेवलप किया है जो डेंगू के सिम्टम्स, कॉजेज एंड इफेक्ट्स को बताएगा। ओके, सो इंडियन साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ हर्बल मेडिसिन अगेंस्ट डेंगू which accounts for the 50% of the global population estimated to be risk from the diseases. Experts are now gearing for the next step, which is to hold clinical trials and toxicity studies before seeking permission from the Ministry of the Ayush and the Drug Controller of India DCI for the commercial production. तो कॉमर्शियल प्रोडक्शन और आयुष मंत्रालय से अप्रूवल मिलने से पहले ही इसको एक बार जांचा परखा जाएगा, इसकी स्टडी की जाएगी टॉक्सिटी की, इसमें टॉक्सिटी कितनी मात्रा में है, और इसका क्लिनिकल ट्रायल भी किया जाएगा। ओके, right now friends, next news is here. Cabinet approves rupees 8,000 crore for rural LPG under PMUY scheme. The cabinet headed by Prime Minister Narendra Modi has approved प्रधानमंत्री उजाला योजना। प्रधानमंत्री उजाला योजना अभी रिसेंटली लॉन्च की गई है और 8,000 करोड़ रुपए इसका एस्टिमेशन रखा गया है और ये 3 सालों में इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। ऑयल मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने ये सूचना दी। तो कैबिनेट ने 8,000 करोड़ रुपए किस लिए यूज़ किए हैं? PMUY, दैट इज़ एब्रीविएटेड एज अ PMUY इज़ नोन एज प्रधानमंत्री उजाला योजना, दैट इज़ फॉर द सिलेंडर्स। ओके, LPG कनेक्शंस फॉर द हाउस होल्ड्स, जो गृहिणियों और घर में लोग यूज़ करते हैं उनको लिए जो सिलेंडर्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके लिए 8,000 करोड़ रुपए का फंड बेसिकली इशू किया गया है। ऑन वेडनेसडे द गवर्नमेंट सेड दैट ओवर 80 lakhs पीपल हैव वॉलंटरी गिवन LPG सब्सिडी। 80 लाख लोगों के लिए LPG सब्सिडी का प्रावधान है, दी जा रही है। ओके, इन लोगों ने बेसिकली 80 लाख लोगों ने सब्सिडी छोड़ रखी है अभी तक। ठीक है, दे हैव गिवन अप द LPG सब्सिडी। वैसे सब्सिडी तो हमारे 121 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, तो अप्रॉक्स 30 से 40 करोड़ लोग जो परिवार हैं इनको सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन 80 लाख लोगों ने अपनी स्वेच्छा से सब्सिडी को छोड़ दिया है कि हम सब्सिडी नहीं लेंगे क्योंकि बिकॉज वी आर वो लोग वेल मैनेज्ड हैं, अच्छी तरीके से मैनेज्ड हैं, दे हैव इनफ मनी, तो उनके पास पर्याप्त पैसा है, सिलेंडर्स को अपने पैसों से खरीद सकते हैं, इसलिए वो LPG में जो सब्सिडी अकाउंट्स में आती है वो उस अकाउंट सब्सिडी को उन्होंने ठुकरा दिया है। ओके, सो मेड इन इंडिया बेलिनो लॉन्च इन जापान। So this is basically a made in India brands, Baleno, launched in Japan. Suzuki Motor Corporation, the parent company of Maruti Suzuki, has launched the made in India Baleno in Japan. तो जापान में भारत की बनाई हुई कार जिसका नाम है Baleno, ये सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के द्वारा बनाई गई है और इसका जो
लॉन्च हुआ है, ये जापान में लॉन्च की गई है। ओके, बेलिनो फर्स्ट एग्जिबिटेड एट अ फ्रैंकफर्ट मोटर शो इन सितंबर 2015 बट लॉन्च इन इंडिया ऑन 26 ऑफ अक्टूबर 2016। ओके, ये भारत में 2016 26 अक्टूबर को आएगी, लेकिन उससे पहले इसकी जो लॉन्चिंग है ये जापान में हुई है। बेलिनो इज मैन्युफैक्चर्ड ओनली इन इंडिया एंड मारुति सुजुकी मेजनर फैसिलिटी इन हरियाणा। हरियाणा में इसका प्लांट लगा हुआ है और ये भारत में ही केवल मैन्युफैक्चर्ड होती है, भारत में ही इसका उत्पादन किया जाता है। सिंस इट्स लॉन्च मारुति सुजुकी हैज सोल्ड ओवर 38,000 यूनिट्स ऑफ द बेलिनो कार्स इन द डोमेस्टिक मार्केट्स। ठीक है, इसके लॉन्च करने से पहले मारुति सुजुकी बेसिकली 38,000 यूनिट्स जो है वो इसको करेगी। ठीक है, बेलिनो विल बी द एक्सपोर्टेड इन मोर देन 100 कंट्रीज। बेलिनो जो ये कार है ये कम से कम 100 देशों में इसको बेचा जाएगा, इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। एंड बेसिकली दिस डेवलपमेंट इज कम्स अंडर द मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स। ओके, सो दीज आर द सर्टेन पॉइंट्स हियर दैट यू शुड रिमेंबर। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, फॉर्मली नोन एज मारुति उद्योग लिमिटेड, इज एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। मारुति उद्योग के नाम से पहले इसको जाना जाता था और ये भारत में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के ऑटोमोबाइल उत्पादन करने के लिए ये कंपनी वाद्य है। इट इज़ अ सब्सिडरी ऑफ जापान ऑटोमोबाइल एंड मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन। ठीक है, ये सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन जो कंपनी है उसका ही एक पार्ट है, उसकी सब्सिडरी है। सीईओ कौन है? ये है केनिची आयुकवा, ये इसके सीईओ हैं और 1982 में इसको फाउंड किया गया था। ओके, राज्यसभा पासेस नेशनल वाटरवेज बिल। राज्यसभा ने नेशनल वाटरवेज बिल को पास कर दिया गया है। द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट पास द नेशनल वाटरवेज बिल 2015 which was tabled in Lok Sabha on 5th of May by the Minister of Road Transport and Highways and Shipping Ministry that is Mr. नितिन गडकरी। जो नितिन गडकरी हैं रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के मंत्रालय जिनके पास में है, नितिन गडकरी जी के पास में, उन्होंने इस बिल को लोकसभा में पेश किया और इसके ऊपर चर्चा हुई और उसके बाद में इस बिल को पास कर दिया गया। ओके, दिस बिल कम्स अंडर द एंट्री 24th ऑफ द यूनियन लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में इस बिल को सम्मिलित किया गया है। वंस इट अलाउ इट कैन पोटेंशियली प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव फॉर्म ट्रांसपोर्टिंग गुड्स विच एट अ प्रेजेंट is denominated by road and rail and open up economic opportunities to new regions। ठीक है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आएगा, इसलिए ये बिल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंडिया करंटली हैज़ इनलैंड वाटरवेज एंड नेशनल वाटरवेज। ठीक है, आपको याद रखनी है कि भारत के पास में जैसे कि जो रोड के द्वारा यातायात होता है, वैसे ही रिवर में, पानी में भी ये वाटरवेज बनाए गए हैं। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि वाटरवेज होते हैं क्या। वाटरवेज बेसिकली होते हैं पानी के द्वारा यातायात होना, ये बहुत ही सस्ता होता है, इसलिए इसको भी प्रेफरेंसेस दी जा रही है। नीति आयोग लॉन्चेस वुमेन ट्रांसफरिंग इंडिया कैंपेन। नीति आयोग विच इज़ अ बेस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ द प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग जो है ये प्लानिंग कमीशन का एक बेस्ट रिप्लेसमेंट भी है और इस बेसिकली नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कैंपेन को लॉन्च किया है। एंड व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग? नीति दैट मीन्स टू मेक सम प्लान्स, वी कैन से ऑल्सो इन हिंदी। नीति का मतलब होता है कि कोई भी रणनीति या नीति, कोई भी नीति बनाना। सो वी कैन से नीति इज एब्रीवेटेड एज अ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, आयोग, वी कैन से नीति आयोग। तो ये जो है भारत का एक कमीशन है जो प्लानिंग कमीशन के स्थान पर इसको रिप्लेस किया गया था। द नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रीमियर थिंक टैंक, वी कैन से ऑल्सो दिस इज अ थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारा भारत सरकार है उसका एक मुख्य थिंक टैंक भी मानते हैं। ओके, थिंक टैंक दैट मीन्स वेयर द ऑल द प्लान्स एंड स्टडीज आर एनालाइज्ड, जहाँ पर सारे के सारे प्लान्स और स्ट्रेटजी का एनालाइज होता है उसको हम थिंक टैंक कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ नीति आयोग। हैज़ लॉन्च द वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनिशिएटिव ऑन 8th of March एट द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ओके, इन पार्टनरशिप विद द UN इन इंडिया एंड माई गवर्नमेंट। तो देखिए ये जो है भारतीय महिला दिवस, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था उसके ओकेजन पर ये लॉन्च किया गया है वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कैंपेन। ओके,
And friends, International Women's Day, which conducted every year on March of 8th, Niti Aayog chairman Mr. Narendra Modi, who is the chairman of Niti Aayog. प्रधानमंत्री जो होता है वो नीति आयोग, जो हमारा ये नीति आयोग है, इसकी अध्यक्षता करते हैं. एंड वाइस चेयरमैन इज अरविंद पनागड़िया एंड सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज अमिताभ कांत. तो ये 3 पोजीशन है, आपको याद रखनी है. प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के अरविंद पनागड़िया, जो ये वाइस चेयरमैन है, और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है ये हैं अमिताभ कांत. नेक्स्ट न्यूज इज हियर फ्रेंड्स, सुरेश प्रभु हैज़ लॉन्च क्लीन माई कोच सर्विस. सुरेश प्रभु ने एक सर्विस लॉन्च की है जिसका नाम है क्लीन माई कोच सर्विस. सो क्लीन माई कोच सर्विस बेसिकली लॉन्च ऑन 11th of March 2016 विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर ऑफ रेलवेज सुरेश प्रभु. जो रेल मंत्री हैं सुरेश प्रभु, इनके द्वारा 11 मार्च 2016 को क्लीन माई कोच सर्विस ये लॉन्च की गई. इसका मतलब है कि अपने कोच को साफ़ सुथरा बनाए रखना, इसका बेसिक मोटिव यही है. दिस सर्विस अलाउज अ पैसेंजर टू मेक रिक्वेस्ट फॉर अ डर्टी कोच टू बी स्वेप्ट. किसी भी कोच में अगर कोई भी गंदगी मिलती है तो यू कैन सेंड मैसेज ऑन अ फ्रॉम योर मोबाइल नंबर टू दिस नंबर 4 times 8 और बाई यूजिंग एन ऐप ऑन अ डिजिग्नेटेड वेबसाइट. तो आप इस कोच को इस ऐप के थ्रू आप यहाँ से मैसेज भी कर सकते हैं कि आपका कोच गंदा है और इस कोच को तुरंत साफ़ कराया जाए. दैट्स वाई दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव टू क्लीन द ट्रेन्स. ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि ट्रेन्स को साफ़ सुथरा बनाए रखने के लिए. एंड प्रभु हैड अनाउंस द स्कीम इन द रेल बजट लास्ट मंथ. ओके, ये स्कीम जो है रेल बजट में लास्ट मंथ में डाली गई थी और उसके बाद में इसका इम्प्लीमेंटेशन कर दिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट आस्क्स टेलकोस टू एश्योर कॉल ड्राफ्ट्स डोंट एक्सीड 2% लिमिट. सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे अपने संदेश दिया है, अपना आदेश सुनाया है कि टेलकॉस जो कंपनी है उससे पूछा है कि 2% से ज़्यादा जो है आपकी कॉल ड्रॉप अगर होती है तो ये नहीं होनी चाहिए. ओके, अगर 2% से ज़्यादा होगी तो उसके लिए दोषी पाए जाएंगे और इन पर कुछ जुर्माना भी लगाया जाएगा. तो बेसिकली व्हाट इज़ द कॉल ड्रॉप? कॉल ड्रॉप इफ़ यू आर ऑन अ कॉल with your friends or any relatives, okay, suddenly your phone cut down or suddenly your call to any other person and your meter starts right now and your balance is cutting down. आपका बैलेंस भी कटना स्टार्ट हो जाता है और आपके जो पैसे हैं मोबाइल से वो कट जाते हैं. दैट मीन्स, और या तो कहीं और फ़ोन लग जाता है या फिर बात करते करते फ़ोन कट जाता है बाय डिफ़ॉल्ट विद द फेलियर ऑफ नेटवर्क्स. ओके, तो ये जो है कॉल ड्रॉप में आता है, ये कॉल ड्रॉप्स के नॉर्म्स में आता है. तो ये 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. टेलकॉस कंपनी को ये पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने. द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द टेलीकॉम ऑपरेटर्स टू गिव इन एन अंडरटेकिंग that they have not exceeded 2% threshold limit of a call drop as mandated in the regulations after the companies claimed helpless in controlling the situation. जितनी भी टेलकॉस that is abbreviated as the telecom companies, तो जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज़ हैं इन सब से पूछा है, जैसे कि एयरटेल है, वोडाफोन है और आइडिया है, इन सारी कंपनीज से पूछा गया है कि जो आपका कॉल ड्रॉप है वो 2% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए. ओके, ट्राई टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन February. बेसिकली दिस कम्स अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ ट्राई. ये जो है ट्राई के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है. एंड ट्राई वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 1997 20th of February by Act of the Parliament to regulate the telecom services and tariffs in India. भारत में टेलीकॉम कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ट्राई ही बना हुआ है. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन and who is regulating this ministry is Mr. रविशंकर प्रसाद. रविशंकर प्रसाद हैं, ये भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण जिसको हम कहते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये ट्राई है और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत में. और ये मंत्रालय किसके पास में है? ये है रविशंकर प्रसाद जी के पास में. गवर्नमेंट मोबिलिशेस ₹370 करोड़ अंडर स्वच्छ भारत कोष. स्वच्छ भारत कोष के अंतर्गत गवर्नमेंट ने 370 करोड़ रुपए जो है इसका अनुदान दिया है. ठीक है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's government launched the Swachh Bharat campaign in October 2014. Since then, various initiatives have been taken by the government to improve the cleanliness of the nation. And free Wi services launched at Srinagar International Airports. Okay,
तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्री वाईफाई सर्विसेज लॉन्च की गई हैं। ये है श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ओके, सो स्टेट रन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड हैज लॉन्च फ्री वाईफाई सर्विस एट श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर ये स्कीम्स लॉन्च की गई है। फ्री वाईफाई सर्विस आपको दी जाएगी और ये प्रोवाइड कराई जाएगी किसके द्वारा? BSNL के द्वारा, भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा। सो फ्रेंड्स, these are about the current affairs, and keep watching our other videos too. Thank you. Have a nice day.